Hello, dear learners. Welcome back to the new chapter of Class 4th Computer. That is chapter number 5 about a useful tool. So, students, today in this session, we are going to learn about a very useful tool which we commonly use in our daily lives. And we are very much dependent on that tool for our daily basis requirement. All right. So, now what is that tool? Let's learn about it. The very first topic is internet. Means yes, internet is that very useful tool for which we are going to learn today. Internet is one of the best technologies gifted to mankind. It has brought the entire world closer. The term internet stands for international network and it is the largest computer network in the world connecting millions of computers. The internet has changed the modern life to a great extent. Using the internet, you can get a variety of information. Also, you can interact and connect with the people through online chatting, audio and video calling, video conferencing, etc. What they're saying is internet एक one of the best technologies है जो mankind को gift करी गई है. Alright, इसने क्या करा है? It has brought entire world, पूरा जो world है has come closer because of this internet only. After that, if we talk about this term internet, तो internet का means होता है international network. Alright, ये वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है. इंटरनेट हैज चेंज द मॉडर्न लाइफ जो है एक बहुत बड़े एक्सटेंट तक चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ जस्ट इंटरनेट. इंटरनेट का यूज़ करके आप वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड जी. Alright, through online chatting, audio and video calling, video conferencing. So there are various methods by which we can interact with the people around the world anywhere. Now, advantages of the internet. Internet के advantages क्या है? So as I told you कि internet is touching and affecting our day to day life. हमारी day to day life जो है वो affect होती है just because of internet. So number one is what? Communication. Internet is the best medium to communicate with people living at far off places. Means what? कि इंटरनेट क्या है एक बेस्ट मीडियम है जिससे आप वर्ल्ड में किसी भी पर्सन से कहीं भी कभी भी इजीली क्या कर सकते हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं. ऑलराइट, इंटरनेट के थ्रू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है लाइक ईमेल, चैट प्रोग्राम्स, instant messaging and video conferencing. So you can use any of these methods for interacting or communicating with the people around the world. You can connect with friends. आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाइक वी हैव फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. ये क्या है? वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. सेकेंड एडवांटेज ऑफ इंटरनेट इज ऑनलाइन रिजर्वेशन. मीन्स इंटरनेट का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? प्लानिंग बुक करने के लिए या एयर या रेलवे बस किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इफ यू वांट टू बुक देन यू कैन इजीली यूज इट फॉर योर ऑनलाइन रिजर्वेशन. ऑलराइट, एयर, रेलवे, बस किसी भी तरीके का टिकट है, ट्रिप, फ्लाइट, होटल्स, रेंटल कार, कुछ भी आप इजीली रिजर्व कर सकते हैं बाय द इंटरनेट जस्ट सिटिंग एट योर होम. Next advantage of internet is electronic banking, that is e-banking. Means internet हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है e-banking जिसे हम ऑनलाइन बैंकिंग भी कहते हैं. इसके थ्रू कस्टमर्स अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं ऑन अ सिक्योर वेबसाइट. ऑलराइट, ई बैंकिंग का यूज करके कोई भी इंक्वायर या ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया जा सकता है ऑनलाइन विदाउट विजिटिंग द बैंक. यानी कि बिना बैंक गए आप ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के किसी भी टाइप की ट्रांजैक्शन को इंक्वायर कर सकते हैं बाय यूजिंग ई बैंकिंग सर्विस ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट वी हैव सर्चिंग इन्फॉर्मेशन. मीन्स व्हाट? इसके अंदर एक सर्च इंजन भी हमें प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू हम अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द इंटरनेट. मीन्स इंटरनेट ने किसी भी टाइप ऑफ टॉपिक पर इफ यू वांट टू सर्च, इफ यू वांट टू गेट इंफॉर्मेशन, सो इंटरनेट के थ्रू अब सर्चिंग जो है बहुत ही इजी टास्क हो चुकी है. राइट, जितने भी करंट इवेंट्स हैं ये न्यूज़ है फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड उससे आप लेटेस्ट तरीके पे अपडेटेड रहते हैं थ्रू ऑनलाइन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़ वेबसाइट्स.
नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन एजुकेशन। सो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक अच्छा टूल है एजुकेशन के लिए भी। मीन्स ऑनलाइन एजुकेशन जैसे हम ई लर्निंग कहते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी टीचिंग या लर्निंग जिसके जो कंप्यूटर के थ्रू होती है एंड इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू होती है, राइट? It allows learning at your own place by providing access to learning material anytime. Means आप अपने एक घर पे बैठ कर भी क्या कर सकते हैं? इंटरनेट मटेरियल आपके पास है, इंटरनेट टूल्स आपके पास है एंड आपके पास जो भी लर्निंग मटेरियल है वो आपके पास है, तो आप एनी टाइम एनी वेयर यू कैन ईजिली लर्न एनीथिंग। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दैट इज ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स का मीन्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को बाय करना, सेल करना कुछ वेबसाइट्स के थ्रू लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड ईबे। दिस इज नोन एज ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स के थ्रू आप 24/7 क्या कर सकते हैं? बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, दैट इज ईमेल। सो ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड किया जाता है एंड उस मैसेज के अंदर इट कुड बी एनीथिंग लाइक टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड साउंड। सो ईमेल सबसे फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ज़्यादातर जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करते हैं? ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? दे चार्ज मनी ओनली इफ यू वांट टू यूज मोर स्पेस फॉर मेल बॉक्स। आप ये केवल तभी आपसे चार्ज करते हैं अगर आपको मेल बॉक्स में ज़रूरत से, यानी कि जितना उन्होंने आपको स्पेस प्रोवाइड किया उससे ज़्यादा अगर आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट है देन दे विल चार्ज, अदरवाइज दे प्रोवाइड यू द स्पेस और द प्लेटफॉर्म जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? आपको क्या करना पड़ता है? आपको रजिस्टर करना पड़ता है, एक ईमेल आईडी चूज करनी पड़ती है, एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है ईमेल सर्विस को एक्सेस करने के लिए। नाउ दे हैव गिवन यू सम ऑफ द वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे गिवन है जो हमें ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लाइक वी हैव www.gmail.com, outlook.com, yahoomail.com, redismail.com, alright? ईमेल मैसेजेस यूजुअली रीच इन अ फ्यू सेकंड एज दे आर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड जो ईमेल मैसेजेस होते हैं वो कुछ फ्यू सेकंड्स में ही ट्रांसमिट हो जाते हैं टू द रिसीवर, बिकॉज ये मैसेजेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली भेजे जाते हैं। So these were some of the advantages of the internet service. And now we are going to learn about some disadvantages also of the internet. यानी कि इंटरनेट के कुछ disadvantages भी हैं which we will learn. So as we know कि इंटरनेट एक बहुत important role play करता है in our everyday life. But however कुछ certain disadvantages भी है इंटरनेट के that we should be aware of. Number one, virus attack. दैट इज व्हाट कि कंप्यूटर वायरस भी एक क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, राइट? व्हेन वी विजिट फेक और अनट्रस्टवर्दी साइट, जब आप किसी भी फेक या अनट्रस्टवर्दी साइट पर विजिट करते हैं तो ये प्रोग्राम्स क्या करते हैं? आपके कंप्यूटर में अपने आप यानी कि खुद से डाउनलोड हो जाते हैं एंड आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। सेकेंड वी हैव साइबर अटैक। सो कंप्यूटर्स जो है वाइडली यूज किए जाते हैं आपके ऑफिसेज, बैंक, शॉप जैसे प्लेसेस पे भी। एंड कुछ लोग क्या करते हैं? आपके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टील करने की यूज करते हैं, है ना? मीन्स कोशिश करता है कि वो आपके इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टील कर सके एंड उसका मिसयूज कर सके, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज साइबर अटैक ओनली। नेक्स्ट वी हैव साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग हेटफुल ऑनलाइन मैसेजेस। एक ऐसा एक्ट जहाँ पे हेटफुल ऑनलाइन मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, दैट इज नोन एज साइबर बुलिंग। एंड दीज डेज आजकल साइबर बुलिंग जो है काफी क्या है? राइज है, ऑन द राइज है अमंग द स्कूल चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स। स्कूल चिल्ड्रन टीनेजर्स के बीच में साइबर बुलिंग जो है बहुत ज्यादा इस तक क्या है? चल रहा है एंड ये प्रैक्टिस को क्या किया जा रहा है? बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। Alright, so these were some of the disadvantages of what? Internet. Now, the internet terminology. So अब हम कुछ important terms को discuss करेंगे which are related to the internet. First of all, we have ISP. ISP stands for Internet Service Provider. ISP means what? Internet Service Provider. ISP एक कंपनी है जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है यूजर्स को। आप ISP को एक्सेस कर सकते हो ओवर टेलीफोन लाइन एंड ISP आपको क्या करेगी? इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देगी।
कुछ पॉपुलर ISPs है, दैट इज जियो, एयरटेल, वी BSNL, that is Bharat Sanchar Nigam Limited. So like this, we have very more ISPs also, but these are some of the popular ISPs जो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है. Second term is WWW and it stands for World Wide Web. मीन्स व्हाट कि WWW क्या है? एक कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड पेजेस का जिसके अंदर टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोस होती हैं. बेसिकली ये एक सिस्टम है जहाँ पे इंटरलिंक्ड पेजेस होते हैं एंड इनके अंदर वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जिसे हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. ऑलराइट, इनफैक्ट कोई भी पर्सन कहीं भी अक्रॉस द ग्लोब क्या कर सकता है? WWW के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. शेयरेबल इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंटरनेट पे ऐसे इंफॉर्मेशन जो शेयरेबल है यानी कि हर कोई इसे एक्सेस कर सकता है, दैट इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब. और वर्ल्ड वाइड वेब को पॉपुलरली वेब या सिंपली W3 के नेम से भी जाना जाता है. वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए आपके पास वेब ब्राउजर होना जरूरी है. सो ये WWW को इन्वेंट किया गया था 1989 में बाय सर टिम बर्नर्स ली के थ्रू. नेक्स्ट वी हैव वेब ब्राउजर. सो इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट, अब किसी भी एक वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है हम उसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ब्राउजर. ऑलराइट, सो एक वेब ब्राउजर क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर. ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको WWW पे जो वेब पेजेस है उनको एक्सेस करने में हेल्पफुल होता है. कुछ पॉपुलर ब्राउजर्स यहाँ पे गिवन है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, Mozilla Firefox, Opera and Apple Safari. Next we have web page. So the individual pages that collectively form the World Wide Web are known as web pages. World Wide Web page जो individual pages है, ऑलराइट, यानी कि वो सभी मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल पेज को कहा जाता है वेब पेजेस. These pages, अब इन पेजेस के अंदर, वेब पेजेस के अंदर टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स भी होते हैं टू द अदर पेजेस. वेब पेज को क्रिएट किया जाता है एक लैंग्वेज का यूज करके, दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट वी हैव हाइपरलिंक्स. द लिंक दैट कनेक्ट्स वन पेज टू द अनदर इज नोन एज हाइपरलिंक. एक ऐसा लिंक जो किसी एक वेब पेज को अदर वेब पेज के साथ कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज हाइपरलिंक. और इस तरीके से हाइपरलिंक आपको अलाउ करता है किसी भी अदर वेब पेज पर मूव करने के लिए विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन ओनली. When the mouse pointer is moved over a hyperlinked image or text, जब आप अपने माउस पॉइंटर को किसी भी हाइपरलिंक्ड इमेज और टेक्स्ट के ओवर मूव करते हो, आपका पॉइंटर जो है एक हैंड सिंबल में चेंज हो जाता है एंड देन आप उस हाइपरलिंक पे जब क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट पेज. नेक्स्ट वी हैव वेबसाइट. वेबसाइट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड वेब पेजेस. एक या एक से ज्यादा जो वेब पेजेस आपस में लिंक्ड होते हैं उस कलेक्शन को कहा जाता है वेबसाइट. एंड द लोकेशन, ओके, वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑन द वेब, दैट इज कॉल्ड वेबसाइट. नेक्स्ट इज URL. URL मीन्स व्हाट? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. एवरी वेबसाइट, हर एक वेबसाइट या फिर एक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है एंड उस वेबसाइट या उस वेब पेज के एड्रेस को ही हम बोलते हैं URL. ऑल द एड्रेसेस, जितने भी एड्रेसेस हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं? दे स्टार्ट विद HTTP और HTTPS, जहाँ पे जो S है इसका मीनिंग होता है सिक्योर. You would found such an address on bank websites also in which money is involved. ऐसे एड्रेस को आपने बैंक वेबसाइट्स पे भी देखा होगा जहाँ पे मनी इन्वॉल्व होती है. जैसे कि कुछ URLs आपको गिवन है लाइक www.kiss.discovery.com, nationalgeographic.com, history.com एंड सभी के आगे क्या है? HTTP लगा है बिकॉज इट्स व्हाट? इट्स URL फॉर दीज वेबसाइट्स. ऑलराइट, नाउ Never leave a space in between the word or letters while typing the URL of a website. जब भी आप किसी वेबसाइट के URL को टाइप करते हैं तो आपको वर्ड और लेटर्स के बीच में कभी भी स्पेस लीव नहीं करना है. नेक्स्ट वी हैव होम पेज. होम पेज क्या है? किसी भी वेबसाइट का जो मेन या जो ओपनिंग पेज होता है, ऑलराइट, which is displayed when the address of a website is typed. जब भी आप एक वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करते हैं
सो टाइप करने के बाद उस वेबसाइट का जो ओपनिंग जो मेन पेज होता है दैट इज नोन एज होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज है आप उसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन इट कैन बी चेंज और अपडेट्स ओनली बाय द ओनर ऑफ द वेबसाइट। उस वेबसाइट का जो ओनर है केवल वही उस वेबसाइट के होम पेज को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वी हैव ब्राउजिंग द इंटरनेट। सो अब हमने टर्म्स को डिस्कस किया, अब हम कैसे इंटरनेट को ब्राउज करते हैं। सो एज अ वेब ब्राउजर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ वेब पेज। एज आई टोल्ड यू, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए क्योंकि एक वेब ब्राउजर की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का। और सबसे पहले हम उसके कुछ जनरल फीचर्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सी स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एज। कैसे माइक्रोसॉफ्ट एज को स्टार्ट करना है। सो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज ओवर देयर। व्हाट यू विल सी, इसके बाद आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो जो है वो ओपन हो जाती है एंड इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। सी, इस तरीके की आपकी माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो होगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे गिवन है। दिस इज बैक बटन, रिफ्रेश बटन, फॉरवर्ड बटन, एड्रेस बार, फेवरेट्स बटन। सो ये कुछ पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट एड्रेस बार। सो द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट, उस वेबसाइट का जो यूआरएल है उसे हम एड्रेस बार में एंटर करते हैं एंड जैसे ही आप यूआरएल को एंटर करेंगे देन यू हैव टू प्रेस द एंटर की। आफ्टर दैट बैक बटन, बैक बटन जो है आपको कहाँ लेके जाता है, उस वेब पेज पे वापस लेके जाता है जहाँ पे आप व्यू कर रहे थे बिफोर कमिंग टू द प्रेजेंट पेज। प्रेजेंट पेज पे आने से पहले जिस पेज को आप देख रहे थे उसी पेज पर आपको बैक बटन वापस लेकर जाता है। नेक्स्ट वी हैव फॉरवर्ड बटन। फॉरवर्ड बटन का एक ऑपोजिट फंक्शन है, जो बैक बटन का फंक्शन था उसका जस्ट ऑपोजिट फंक्शन होता है फॉरवर्ड बटन का। मीन्स व्हाट, कि आपको नेक्स्ट पेज पे, ओके, इट विल टेक यू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वेब पेज। जो मीन्स जो एक सीक्वेंस है पेजेस का, उन्हीं सीक्वेंस में आपको क्या किया जाएगा, जहाँ पे आप करंट पेज पे उससे जस्ट नेक्स्ट पेज पे आपको फॉरवर्ड बटन लेकर जाता है। देन वी हैव व्हाट, रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन क्या है, रिफ्रेश बटन का यूज किया जाता है किसी भी वेब पेज को रीलोड करने के लिए। एंड दैट कैन बी यूज्ड, ये कब यूज किया जाता है, जब वेब पेज आपका प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है या फिर टू चेक और टू सी कि कोई भी चेंजेस जो है आपके पेज में करे गए हैं सिंस द लास्ट विजिट। नेक्स्ट इज फेवरेट बटन। फेवरेट बटन हम यूज करते हैं यूआरएल को सेव करने के लिए दैट यू लाइक एंड मे वांट टू विजिट लेटर। राइट, कोई भी यूआरएल आपको पसंद आया है या आप उसमें बाद में फ्यूचर में भी विजिट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए उस यूआरएल को सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग फेवरेट बटन। एंड अगर आप किसी भी यूआरएल को फेवरेट बनाना चाहते हैं देन यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द फेवरेट बटन। सबसे पहले फेवरेट बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको क्लिक करना है ऑन द ऐड दिस पेज टू फेवरेट बटन पर। सो आपका जो वो यूआरएल है वो आपके फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा एंड देन आप उस पर कभी भी आगे क्लिक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को दोबारा से एक्सेस करने के लिए। राइट, सी you when you visit one page followed by another is known as navigating the web or surfing the web। जब आप क्या करते हैं, किसी भी एक वेब पेज पे विजिट करते हैं जिसमें आगे और भी वेब पेजेस होते हैं, इस विजिटिंग को कहा जाता है नेविगेटिंग द वेब और सर्फिंग द वेब। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, होम बटन। होम बटन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द होम पेज ऑफ द ब्राउजर। ऑलराइट, आपके ब्राउजर के होम पेज को डिस्प्ले करने के लिए जो बटन यूज किया जाता है दैट इज होम बटन, यानी कि वो अपने आप से ओपन होता है जब आप अपने ब्राउजर को ओपन करते हैं। Now the next topic which we have is that is search engine। So web search engine, web search engine क्या है, एक वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है to search for the information on the world wide web। Alright, तो सर्च इंजन आपको या किसी भी यूजर को अलाउ करते हैं एक कीवर्ड जो उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है विच यू वांट। राइट, सो आप पहले क्या करेंगे, यूजर को एक कीवर्ड किससे रिलेटेड होना चाहिए, उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए जो आप सर्च करना चाहते हैं। राइट, या फिर उस वेबसाइट से रिलेटेड होना चाहिए जिसके अंदर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं। सो उससे रिलेटेड एक कीवर्ड को आपको सर्च इंजन में सबसे पहले एंटर करना है। एंड इन वेबसाइट्स को पॉपुलरली हम सर्च इंजन्स कहते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो यूजुअली हमेशा एज अ लिस्ट ऑफ लिंक, यानी कि डिफरेंट लिंक
के लिस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वो आपके सर्च रिजल्ट्स होते हैं एंड देन वो लिंक जो है वो आपको किसी टेक्स्ट, इमेज या ऑडियो वीडियो फाइल की तरफ भी पॉइंट कर सकता है। क्लिक ऑन ऐड दिस पेज टू फेवरेट बटन ऑन द एड्रेस बार। एड्रेस बार पे आपको क्या ऐड दिस पेज टू फेवरेट बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं अपने किसी भी पेज को फेवरेट्स में ऐड करने के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है सर्च इंजन्स के, लाइक वी हैव गूगल, बिंग, अल्टा विस्टा। तो इन सभी के ये क्या है, सर्च इंजन्स के ये लिंक है। सी लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन क्या है, आपके गूगल के फाउंडर्स है। नाउ टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन ऑन द नेट। अब इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स। नंबर 1, सबसे पहले आप उस ब्राउजर को ओपन करेंगे एंड देन यू विल गो टू द सर्च इंजन वेबसाइट। सेकेंडली, आपको किसी भी वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस को जो कि उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए विच यू वांट टू सर्च, उस वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस को आपको एंटर करना है एंड देन आपको हाइपर लिंक्स पे क्लिक करना है जो आपका सर्च इंजन शो कर रहा है एज अ रिजल्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इट दैट इज नेटिकेट्स। नेटिकेट्स क्या है? दीज आर द set of rules that should be followed by using the internet, and let's learn about these rules. उन सेट ऑफ रूल्स को जो हमें फॉलो करने चाहिए इंटरनेट को यूज करने दौरान, उस सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है नेटिकेट्स। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट रूल और द वेरी फर्स्ट नेटिकेट इज दैट राइट क्लियरली। हमेशा आपको क्लियरली वहां पे लिखना चाहिए सो दैट यूजर उस मैसेज को समझ सके विच यू वांट टू कन्वे। सेकेंडली, वन शुड बी केयरफुल बाई पोस्टिंग द कंटेंट ऑनलाइन। जब आप अपना कोई भी कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो आपको काफी केयरफुल रहना चाहिए। आपके पोस्ट पब्लिक होते हैं, दे कैन बी व्यूड बाय एनीवन। क्योंकि आपके पोस्ट पब्लिक है, उन्हें कोई भी देख सकता है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। देन कैपिटलाइज लेटर शुड नॉट बी यूज वाइल टाइपिंग। जब भी आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते वक्त कैपिटलाइज लेटर्स का यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसे क्या कहा जाता है, उसे एक शाउटिंग की तरह कंसिडर किया जाता है ऑन दी अदर्स। नेक्स्ट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लाइक योर एड्रेस, फोन नंबर, ये कभी भी आप ऑनलाइन शेयर नहीं करेंगे विदाउट कंसल्टिंग योर एल्डर्स। नेक्स्ट, देयर शुड नॉट बी यूज ऑफ एनी फेक ईमेल आईडी। किसी भी फेक ईमेल आईडी का आप यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज करना चाहिए वाइल टाइपिंग। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, बी स्मार्ट एंड सेफ। सी कीप सेफ बाय नॉट रिवीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। एज आई टोल्ड यू कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आपको रिवील नहीं करना है बाय यूजिंग द इंटरनेट। ऑलराइट, इट इंक्लूड्स ईमेल आईडी। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें जो आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक योर ईमेल आईडी, ऑलराइट, आपका हाउस एड्रेस, फोटोज, फोन नंबर एंड पासवर्ड। सेकेंडली, मीट ऑनलाइन फ्रेंड्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। हमेशा अपने एल्डर्स की प्रेजेंस में ही आपको अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेप्ट ईमेल एंड मैसेजेस ओनली फ्रॉम द पीपल यू नो। आपको केवल उन्हीं लोगों के ईमेल्स एंड मैसेजेस एक्सेप्ट करने चाहिए जिन्हें आप जानते हैं। ऑलराइट, किसी भी वायरस या स्पैम मैसेजेस से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन नेट पे है वो हमेशा करेक्ट नहीं होती है। सो आपको उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को चेक करना चाहिए कुछ अदर सोर्सेस के साथ भी, लाइक बुक्स, वेबसाइट और समवन यू नोस। नेक्स्ट, टेल योर टीचर और एन एडल्ट फैमिली मेंबर। आपको अपनी टीचर या एडल्ट फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना चाहिए अगर कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हैं एंड एक ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आप उसके साथ अनकंफर्टेबल है। सो यू शुड इन्फॉर्म योर टीचर और एनी ऑफ द एडल्ट। एंड देन बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ऑनलाइन। है ना, हर एक जो पर्सन आपको ऑनलाइन मिल रहा है आपको उनके लिए पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। So these are some of the netiquettes or some of the safety measures which we should always remember while using the internet. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood it. Let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.